تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ لوگ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، وہ کون سے میجرز لے سکتے ہیں اپنے انڈیویجولی طور پہ، اس کو ڈائبٹیز سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ لائف سٹائل موڈیفکیشنز آپ کی زبان میں. تو وہ کائنڈلی تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. اچھا، جیسا میں نے بتایا تھا کہ شوگر کا کنٹرول ہے. شوگر ایسی بیماری ہے جس کو آپ جڑ سے کھیڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جس طرح عموماً بیماریاں ہوتا ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہم جڑ سے کھیڑ کر نہیں پھینک سکتے. اس کا صرف کنٹرول ہے. وہ کس طرح ہے؟ ایک تو اپنے طرز زندگی کو اپنے تبدیل کرنا ہے، لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا کنٹرول آپ کی ادویات پہ اور انسولن کے اوپر ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے. ٹھیک ہے. طرز زندگی سے مراد یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں ایک سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کھانا ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے دین نے بھی یہ چیزیں سکھائی، لیکن لوگ اس چیز سے ہٹ کے جب اس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پھر نقصان ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے، لائف سٹائل موڈیفکیشن یا طرز زندگی میں بدلاؤ کیا ہے، وہ کیا کس طرح مثبت تبدیلی لے کے آتا ہے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں. وہ اس طرح ہے کہ اپنی خوراک پہ توجہ دیں. دوسرا، ورزش کریں. ٹھیک ہے. اب خوراک میں کیا ہمیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے جیسا بتایا تھا ہمارے جسم کو مختلف اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، وہ بلڈنگ بلاکس یا وہ چیزیں جو کہ ہمارے جسم کو بنانے میں مدد دیتی ہیں. اس میں شکر آ جاتا ہے، گلوکوز جس کو ہم کہتے ہیں، چربی یا خیاتین جس کو ہم پروٹین کہتے ہیں، وہ. اور اسی طرح کچھ وائٹامنز ہیں جو کہ منرلز ہیں جو کہ ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے اعضاء اور ان کی کارکردگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ آپ کو چیزیں جو ہے خوراک سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب خوراک کیا ہوتی ہے؟ جیسے روٹی ہے، چاول ہے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی کہ ہم نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، میں شربت نہیں پی رہا، میں چاکلیٹ نہیں کھا رہا، تو شاید میرا کنٹرول ہے. میں چائے میں چینی ملا کے نہیں پی رہا تو اس کا مطلب میرا کنٹرول ہے. لیکن جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ روٹی کتنی کھاتے ہیں، جو کہ ہماری ایک اسٹیپل ڈائٹ ہے پاکستان میں، روٹی چاول. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ روٹی چاول کتنا کھاتے ہیں، تو ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ایک ٹائم پہ 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں. اور یہ وہی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم میٹھا نہیں کھاتے. تو روٹی اور چاول کا میں اس لیے بتا رہا ہوں، روٹی اور چاول میں شوگر سب سے زیادہ ہوتی ہے. جی جی، اسٹارچ ہے، وہ اسٹارچ ہے، ہاں کاربوہائیڈریٹس کو ہم کہتے جی ہیں، جی. نشاستہ. یہ سائز کی میں اگر آپ پیمانہ بتا تو 8 انچ جس کو ہم درمیانہ سائز کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے 6 انچ سیدھی سائز جس کو ہم چھوٹا کہتے ہیں، 8 انچ درمیانے سائز کی روٹی جس طرح پیزے کے سائزز ہوتے ہیں آپ دیکھیں، 12 انچ بڑا ایک ایکسٹرا لارج سائز. جی جی 8 انچ کے سائز کی درمیانی روٹی میں ایک اندازے کے مطابق 8 چمچ کے برابر چینی کے وہ جو ہوتی ہے شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ بہت زیادہ ہے. میں اگر آپ کو مثال کے طور پہ یہ بولوں کہ آپ ایک گلاس میں 8 چمچ چینی ملا کے پی لیں پانی کے اندر، تو آپ پیئیں گے؟ آبویسلی نہیں پیئیں گے، جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس، جس طرح آپ کے برانڈس آتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس کے، ان میں بھی ایک گلاس کے اندر عموماً 8 سے 10 چمچ کے برابر چینی. یہ کڑوا پانی اس کو میٹھا کرنے کے اندر چینی ملائی جاتی ہے. روٹی اور چاول اور اسی طرح یہ جو آپ کے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، یہ جو ہے ان کا نقصان جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ چیزیں ہیں. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنی جو روٹی چاول کھا رہے ہیں اس کو فائبر کی صورت میں کھانا ہے، فل فائبر فارم میں کھانا ہے. جیسا روٹی ہم کہتے ہیں کہ بازاری آٹا جیسا تھیلے کا آٹا ملتا ہے، اس کے اندر چوکر نکلا ہوا ہوتا ہے. ہم پیشنٹس کہتے ہیں کہ آپ جو ہے چوکر سمیت آٹا گوندیں اور اس کی روٹی بنا کے کھائیں، کیونکہ اس میں ہوتا فائبر، چوکر فائبر ہے. وہ فائبر جو ہوتا ہے وہ روٹی کے اندر موجود شوگر کو ایک دم خون میں شامل نہیں ہونے دیتا. جس طرح میں کاربونیٹڈ ڈرنک کا میں بتا رہا تھا، اگر آپ ایک گلاس کاربونیٹڈ ڈرنک کا پیتے ہیں جی اس کے اندر جو موجود شوگر ہوتی ہے وہ فوراً خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے. ہاں جی. اسی طرح اگر آپ سادے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں یا میدے سے بنے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں جی تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک دم شوگر کو اپنے خون میں شامل کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو فائبر سمیت کھائیں. ملک شیک وغیرہ مت پئیں، کوشش کریں پھل کو ثابت کھائیں، اس کو چبا کے کھائیں. سیب کھاتے ہیں، مالٹا کھاتے ہیں، اس کو چبا کے کھائیں تاکہ آپ کا فائبر بھی اس کے اندر موجود ہو. ہاں جی. اس میں جب آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں، 4 روٹیوں کا آپ نے نام لیا ہے، ہاں، اس میں اگر تھوڑا سا آپ کائنڈلی بتا دیں کہ لوگ کتنے انٹرول کے ساتھ کھائیں، زیادہ انٹرول لیں، 3 ٹائم کھائیں، 2 ٹائم کھائیں، اس کے بارے میں.
अच्छा, इसमें अमूमन होता है, हम कहते हैं पोर्शन साइज, मिकदार। जी हम मिकदार को डिस्कस करते हैं। देखें, हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये चर्बी, यातीन, नशास्ता, ये 3 बड़ी चीज़ें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे जिस्म के लिए जी बनाने के जी लिए, जी इनका हमने तनासुब रखना है, हर चीज़ को मुनासिब मिकदार में। 3 बड़े इदारे हैं, ADA अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और UK डायबिटीज़ फेडरेशन। दुनिया इसको फॉलो करती है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स उनकी रिसर्चेस को फॉलो करते हैं। वो ये बताते हैं कि आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन मुनासिब मिकदार में, जी उसको मुनासिब करें। तो उसका तरीका ये है कि आप एक प्लेट अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, उसमें कोशिश करें 50% प्लेट में सलाद को रखें जो कि फाइबर की फॉर्म है, 25% आप प्रोटीन के फॉर्म में दाल, मुर्गी, मछली, अंडा, इनमें होता है प्रोटीन, हयातीन, जो कि अब आपके पट्ठों को बनाने में से मदद देता है, मसल्स को बढ़ाता है। और 25% की फॉर्म में आप जो है वो रोटी रख लें या चावल रख लें, जो कि जी प्योर फॉर्म में आपकी स्टार्च है, एक शुगर है, शुगर की किस्म है जो कि आपके जो है बढ़ने वाली है। जब आप इस फॉर्म में खाएंगे, सलाद में फाइबर की मकदार बहुत कम ज़्यादा होती है, शुगर की मकदार उसमें बहुत कम होती है। तो जब प्रोटीन जो है, ये जो आपका दाल, मुर्गी, मछली है जो कि हयातीन है, इसका काम भी यही होता है कि आपकी जो रोटी के अंदर मौजूद शुगर है उसको एकदम खून में शामिल होने से रोकना, उसके जज्ब होने के अमल को स्लो कर देना, जिसकी वजह से कंट्रोल अच्छा होता है। तो इंटरवल्स में यही है, नाश्ता करें, उसके 3 घंटे बाद एक फल लें, खाने के फ़ौरन बाद फल नहीं लेना, 3 घंटे बाद। सही उसके 3 घंटे दोपहर का खाना खाएं, उसमें सलाद और ये जो तनासुब जो मैंने अभी बैलेंस बताया, ये आप इस तरह रखें। शाम को सब्ज़ कहवा पी लें, साथ कुछ स्नैक रख लें प्रोटीन फॉर्म में। रात के वक्त खाना खाएं थोड़ा सा, सोने से पहले कोई भी स्नैक ले लें। ये अमूमन डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये चीज़ हम बताते हैं ताकि वो ब्रेक रखें अपनी खुराक को 600 में तकसीम करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, वक्फे से खाएं। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो इसमें आपने ये तो डाइट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा आप अगर बता दें लोगों को किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। अमूमन देखें, जैसे मैंने बताया था, रिस्क फैक्टर्स में कम ये कौन से लोग हैं जो कि ख़तरे में होते हैं डायबिटीज़ के होने में, उसमें ये था कि ऐसे लोग जो कि वर्जिश नहीं करते, जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनका बिल्कुल, तो उनमें यही है कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को अगर देखें तो वो यही कहती है कि आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप 30 मिनट डेली करते हैं तो हफ्ते में 5 दिन इस तरह कर लें जी लेकिन 2 दिन इकट्ठे मत छोड़ें बीच में, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 मिनट करते हैं तो करें। तो उसमें वर्जिश की में क्या आ सकता है, वर्जिश में रॉयल वॉक नहीं होती जिससे हम अमूमन चल रहे हैं आम बेहतर, ये वर्जिश कंसिडर्ड नहीं होती। मैं बिल्कुल इसी हाँ। तरफ ही आने लगा था। जब आप वर्जिश की बात कर रहे हैं तो अगर आप इस पे थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट कर दें कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने ये फ़लाँ काम किया है तो आज की एक्सरसाइज तो हमारी हो गई है, तो उसके बारे में बताएं कि एक्सरसाइज में जिस तरह हम कहते हैं कि 30 मिनट वॉक, तो उसका मतलब 30 मिनट वॉक है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज की मुख्तलिफ मैंने बताया एग्ज़ाम है, ऐसे लोग जिनको एक्सरसाइज लफ्ज़ का पता ही नहीं है, बहुत से लोग हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस नहीं है उनको इन चीज़ों के हवाले से। तो उसमें ये है कि अगर आपको वर्जिश का पता ही नहीं है तो आप ये करें कि आप नॉर्मल चलते हैं, उसी तरह मरीज़ को हम बता देते हैं, आप उसको तेज़ कदम के साथ चलें, जी ऐसे कि जिससे आपको थोड़ा सा उससे सांस चढ़े, हल्का सा पसीना, जॉगिंग हाँ स्टाइल। जागे, तो हाँ ये ब्रिस्क वॉकिंग इसको कहते हैं, ये वर्जिश में कंसिडर होता है। दूसरा, अगर आप कहते हैं जैसा रोज़मर्रा जो हम काम कर रहे हैं वो भी क्या इसमें वर्जिश में कंसिडर होते हैं कि नहीं, जैसा ख़वातीन हैं वो अपने घरेलू जो है वो काम करती हैं, वो सफाई करनी है, खाना बनाती हैं, ऊपर नीचे उनका पोर्शन में ऊपर नीचे आना होता है, कुछ लोग इनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और उसमें थोड़ी जान लगती है आपके काम में, जी गोडी करते हैं पौधों की हाँ कटाई वगैरह। तो अगर आप इस तरह की काम करते हैं तो ये भी वर्जिश में कंसिडर होते हैं। सही। तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं ये लेकिन वो लोग हैं जो एक्टिव हैं, जी जी वो रूटीन बेस्ड होना चाहिए। प्रोटीन बेस्ड आपके होने चाहिए। तो इसमें अब आगे आ जाती हैं जो मेडिसिन, जो टैबलेट्स आती हैं या जो कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शन हैं, इंसुलिन जो यूज़ हो रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें देखें, मैंने जैसा कंट्रोल में एक आ गया लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी में बदलाव, हाँ वो एक मुस्बत है। इसी तरह
कंट्रोल की जो सेकंड है वो होता है कि हम कहते हैं कि डॉक्टर जो आपको अद्वियात तजवीज़ करता है, जैसे नंबर पे इंसुलिन, ठीक है। तो अद्वियात मुख्तलिफ़ किस्म की हैं शुगर के हवाले से, और हर दवाई का एक मुख्तलिफ काम होता है इंसानी जिस्म में शुगर कंट्रोल करने का। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हमारे खून में से शुगर को फ़िल्टर करके गुर्दे के ज़रिए फ़िल्टर करते हैं और उसको पेशाब के बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद जो शुगर है, ठीक है, या इंसुलिन जो कि आपकी रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको इम्प्रूव करने की जो है उसको मदद देती है। और कुछ जो होती हैं कि आपके खून में जो शुगर है उसको आपके पट्टों तक, खुलियों तक ले जाने में मदद देती हैं। इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात का मुख्तलिफ काम है जिस्म के अंदर। वो सब का अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है आपका शुगर को कंट्रोल करना। और इसी तरह इंसुलिन आ जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर जो है जब उनका शुगर लेवल बहुत अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो अद्वियात से भी उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, तो डॉक्टर जो होते हैं वो शुरू में दवाई के साथ आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि पेशेंट्स का दवाई का असर कम रह जाता है तो पेशेंट अल्टीमेटली इंसुलिन के ऊपर आ जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो जब अंदर इसकी कमी होती है तो अल्टीमेटली इसको आपको बाहर से देना पड़ता है। उसका काम क्या है, आपकी शुगर स्कोर को इसको कम करना। इसकी भी अब बहुत सी इकसाम है, अगर आप पूछना चाहें इसके हवाले से। इसमें तो वो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है, लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक से ज़्यादा डीपली चला जाएगा इसमें। अब आप बता दें कि मिसकंसेप्शंस मगालते हैं जो लोगों को, कुछ कहते हैं कि इंसुलिन लेना शुरू हो गया है, फलां बंदे को इंसुलिन लगना शुरू हो गया, अब तो वो नहीं बचेगा, अब तो वो जाता रहेगा। इस जो मगालते हैं लोगों को, उनके बारे में बता दें, उनको गाइड कर दें कि इससे डरने वाली ये चीज़ नहीं है। उस तरह के जिस तरह एड्स है, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो गया, ये उस तरह की उस नौइयत की बीमारी नहीं है अगर मैयर्स ठीक से लिए जाए। हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस का फैलाव बहुत ज़्यादा है, और हम इसको कहते हैं कि ये बीमारी पेशेंट्स को, कि अब बीमारी नहीं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और अद्वियात के साथ। तो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो आपके जिस्म में जब कम हो जाता है तो हम इसको बाहर से लगाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चूँकि मुझे काफ़ी वसी एक्सपीरियंस हवाले से बहुत से पेशेंट्स की काउंसलिंग की है, उसमें ये बहुत से मगालते हर बैकग्राउंड मैंने देखे हैं लोगों के जहनों में ये हैं कि जी इंसुलिन फलाने बंदे को इंसुलिन लगी है, ये इसका आखिरी स्टेज है, ये कुछ ऐसे बाद मर जाएगा। या फिर कुछ इंसुलिन पेशेंट्स लगाते ही नहीं है, उनको डर होता है, डॉक्टर लगाना चाह रहा होता है उनको इंसुलिन कि उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, उनसे हमदर्दी करना चाह रहा होता है, वो उस पर होते हैं जी कि शायद मैं इंसुलिन लगा लूँगा मेरी शुगर लो हो जाएगी मैं मर जाऊँगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको बाहर से लगाया जाए। बिल्कुल इसी तरह जब आपके जिस्म में जब आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, आप कमज़ोरी फील करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पानी नहीं पिएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, सारे बॉडी की नीड है। तो वो जब खाएंगे तो आपको ताकत है कि सेम लाइक आपकी बॉडी की नीड है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब वो नीड है तो वो जब कम हो जाती है हम उसको बाहर से देते हैं। सेम लाइक इसी तरह एक मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। अब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आपका खुदा ना किसी अजीज़ का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने उसको कह दिया जी कि आपने खून का अरेंज करना है, 2 से 3 बोतलों का खून का अरेंज करना है, तो क्या आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे उसके लिए? डेफिनेटली करेंगे ना, क्योंकि वो उसको उसके अंदर उसकी कमी है। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने उसको बाहर से देना है। तो इसी तरह इंसुलिन जब अंदर कम हो जाएगी तो हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसको बाहर से देते हैं। तो ये एक हार्मोन है, इसको आप डरने की ज़रूरत सही। आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं जो कि ये बॉडी की बेसिक नीड है, तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक जब इंसुलिन आप लगाते हैं, कई दफ़ा होता है कि डोज ज़्यादा चली गई और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ मैं आ रहा हूँ, तो उसके बारे में बता दें थोड़ा सा। अच्छा देखें, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का कम हो जाना इसको हम कहते हैं आम, और हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का खून में नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाना। जी। देखिए हाइपो ये शुगर का लो हो जाना वो किसी भी इंसान में हो सकता है। जिस तरह मुझे शुगर नहीं है, आपको शुगर नहीं है जी, वो मुझे भी हो सकता है कि मैं कुछ खाए पिए बिना मैं पूरा दिन कोई फिज़िकल एक्टिविटी में लगा रहा हूँ, एक दिन मैं करता रहा, अब शाम पर क्या हो रहा है कि मुझे कमज़ोरी फील होना शुरू हो गई है, मेरे जिस्म में कपकपा लर्जा सतारी होना शुरू हो गया, तो मुझे ये अलामात है कि मुझे शुगर जो होती है मेरी, तो मैं उसमें क्या करता हूँ फ़ौरन कुछ खा पी लूँगा, तो ये मेरी भी होती है। लेकिन
शुगर के मरीज़ों में चूँकि वो दवाई ले रहे होते हैं, इंसुलिन लगा रहे होते हैं, तो उसमें उनकी इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इसलिए पेशेंट्स को बताते हैं कि आप इस सूरत में अपने साथ थोड़ी सी एहतियात करें, इसको मैनेज करने में कोशिश करें, इसको मैनेज करें। दूसरा हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर का खून में बढ़ना है। जैसा शुगर का कम हो जाना ख़तरनाक है, जैसा शुगर का बढ़ जाना भी थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपकी पेचीदगियों की तरफ आपको लीड करता है, उस तरफ लेकर जाता है। तो खून में शुगर जब बढ़ जाता है, जिसके हम नॉर्मल लेवल बताते हैं, जैसे आपकी शुगर में जो मैंने बताया था 200 से ऊपर आ रही है या 140 नॉर्मल लेवल है, अगर से ऊपर आती है तो शुगर आपकी बड़ी भी है। 300 से ऊपर जाती है तो ये ख़तरनाक स्टेज होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि शुगर चूँकि खून इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो ये जब खून जब इस्तेमाल नहीं कर पाता तो ये शुगर आपके अज़ा पे इफेक्ट करती है, वहाँ पे शुगर प्रेशर बिल्डअप करिए, आपकी नसबनाई को कमज़ोर करती है, आपके गुर्दों को कमज़ोर करती है। फिर सब मुख्तलिफ अज़ा में होती है जो कि आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इसकी तरफ ये अलामात होती है। तो वो अगर आप उससे आगे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। इसमें आगे मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूँगा। अगर अब यही है कि डॉक्टर साहब आपका पैगाम जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए क्या है, आपकी राय क्या है, आपका मशवरा क्या है? अच्छा, इसमें ये देखें, मैंने जैसा बताया पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होगी, फैलाव बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान पहले तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। और उसकी बड़ी वजह क्या है कि हमारे माशरे में एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। मैं अगर आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंसेस में, मैंने हर तबके का पेशेंट के साथ मुझे मौका मिला कि मैं उसकी शुगर के हवाले से जहाँ से उसको बता सकूँ, जिसमें एक गरीब मजदूर से लेके एक बड़े अहदेदार तक के पास गया हूँ, जिसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, मुख्तलिफ लोग थे जो जिनका सोशल बैकग्राउंड होता है। अब उनमें एक चीज़ कॉमन यही पाई गई कि लोग कहते हैं कि मैं जब तक सही मोटा ना हो, मेरा पेट बाहर ना निकला हो, तब तक मैं सेहतमंद नहीं लगता। सही। मेरे ऊपर कपड़े सूट नहीं करेंगे, मैं खूबसूरत नज़र नहीं आऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा एक जो जिस्म और बदन का एक तनासुब होता है, हम BMI कहते हैं, उसको हम नापते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी की वजह से हमारे लोगों को खुराक के हवाले से नहीं पता, वर्जिश का नहीं पता कि हमें क्या करना है, घूमना कैसे है, वर्जिश कैसे करनी है, इलाज जो है इंसुलिन से मैंने बताया, गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं है, ना किसी ने उनको कोशिश की है बताने की कि इंसुलिन जो है वो ख़तरनाक चीज़ नहीं है, दवाई जो है वो आपके लिए ख़तरनाक है। हाँ, नहीं खाएंगे तो तब ये ख़तरनाक है। इसी तरह बहुत से लोगों में ये भी होता है कि लोग दवाई नहीं खाते लेकिन घरेलू टोटके कर रहे होते हैं। एक बंदा है, उसको मैंने देखा, वो 8 करेले लेके तो उनका जूस बना रहा है, ज़्यादा करेले के पानी से जो है मेरी शुगर लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैं उठनी का दूध पीऊँगा उससे मेरी शुगर जो है वो कम हो। हाँ, इनमें रिसर्च है, करेले के पानी में करेले में ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो आपकी शुगर को लो करने में मदद देते हैं। इसी तरह आपके उठनी के दूध में भी है, लेकिन 8 करेले उनको फिर उनका पानी निकालना करने से बेहतर है कि एक छोटी सी गोली खाएं। ये बहुत सी चीज़ें, लैक ऑफ एजुकेशन है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि लोगों को, जैसा मैंने 5 से 6 साल लोगों को मतलब अवेयरनेस किया, मैंने सदक़े जारिया के तौर पे भी मैं ये नहीं देखता कि फलाना मैं किसी की कोई जॉब कर रहा था किसी के लिए। हमारा यही मिशन होना चाहिए, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर फार्मेसी है रिलेटेड, हम फील्ड के लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन के, तो हमारा मकसद यही होना चाहिए लोगों में इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि किसी की ज़िंदगी में एक डिफरेंस आ जाए, उसकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनका ये एक ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया सवाल।